Hello students of 3rd grade, this is your 3rd AB assignment. Today we will start chapter number 7, Housing and Clothing. Identify and write what each one is doing. Choose from the words given here. So यहाँ पे words दिए गए हैं mopping, dusting, washing, sweeping and organizing. So first, a gardener is dash the garden. So gardener क्या कर रहा है? He is sweeping the garden. So you will write sweeping. Saurabh is dash the toys. So what is Saurabh doing? He is organizing the toys. Dad is dash his car. What is dad doing? Dad is washing his car. A woman is dash the floor. What is the woman doing? She is mopping the floor. Now, our house. Like birds and animals, human beings also need a place to live in. अब birds और animals के जैसे humans को भी रहने के लिए जगह चाहिए. They live in houses. So human beings रहते हैं houses में. A house can be big or small. A clean house helps us to remain healthy and happy. A house gives us shelter from cold, rain, wind and heat of the sun. So हमें house shelter देता है किस किस चीज़ से? Cold, rain, wind and heat of sun. It also protects us from the thieves and the animals. Now, what is our house made of? Our house should be strong enough to give us protection. It should have a firm base or foundation. So हमारा घर काफ़ी strong होना चाहिए हमें protection देने के लिए. ये firm होना चाहिए. Firm मतलब not soft और not shakeable. वो आसानी से हिलना नहीं चाहिए और टूटना भी नहीं चाहिए. और फाउंडेशन और उसकी जो बुनियाद है वो lower support of the structure should be strong or strong walls and roofs. A house is built using different materials. What are the materials? Cement, steel, bricks, wood, glass and iron are some of the materials used to build a house. So house बनता है cement, steel, bricks, wood, glass and iron से. The walls and roofs are made up of stones or bricks and cement. So walls और roofs किस चीज़ से बनती हैं? Stones, bricks and cement. You cannot see the bricks because there is a layer of cement and paint covering them. So हम bricks को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उसके ऊपर सीमेंट की एक लेयर होती है एंड पेंट होता है जो उसे कवर करके रखता है. The doors and the windows can be made up of wood, glass and metal. So जो windows हैं वो wood से बन सकती हैं, glass से बन सकती हैं और metal से भी बन सकती हैं. Metal क्या होता है? Strong and hard substance such as steel, iron and gold. So mostly जो हमारे घरों में होती हैं विंडोज़ वो स्टील और आयरन से बनती हैं. फ्लोर्स कैन बी मेड ऑफ सीमेंट, मार्बल्स, टाइल्स और वुड. जो फ्लोर्स हैं वो सीमेंट, मार्बल्स, टाइल्स और वुड किसी भी चीज़ से बन सकता है. A good house should also have the following features. A good house में कौन कौन से features होने चाहिए? It should be well lit, airy, neat and clean. वेल लिट मतलब उसमें रोशनी अच्छी आनी चाहिए, हवा अच्छी आनी चाहिए, वो नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए. अ वेल लिट हाउस. अ गुड हाउस शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ विंडोज़ एंड डोर्स सो दैट सनलाइट रीचेस इनसाइड द हाउस. सो अच्छी रोशनी के लिए एक घर में बहुत सारे विंडोज़ और डोर्स होने चाहिए. सनलाइट कीप्स द हाउस ड्राई एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स. सनलाइट क्यों चाहिए? क्योंकि वो हाउस को ड्राई रखेगी और जर्म से फ्री रखेगी. सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. सनलाइट एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है जो जर्म्स को किल कर देता है. एन एयरी हाउस. अ हाउस शुड हैव एम्पल सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर थ्रू विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स. सो हाउस में वेंटिलेटर्स होने चाहिए मतलब रोशनदान होने चाहिए जिससे फ्रेश एयर पास कर सके. दिस हेल्प अस टू ब्रीथ वेल. A house should also have open spaces such as verandas, courtyards and balconies where we can get plenty of fresh air and sunlight. So house में ये चीज़ें भी होनी चाहिए. Windows should have shades to keep the rain from entering the house. Windows पे shades भी होने चाहिए ताकि जो rain का water है वो घर के अंदर enter ना कर सके.
Wire mesh on the windows prevent insects like mosquitoes and flies from entering the house. Wire mesh क्या होता है? जो विंडोज़ के ऊपर हमने वायर की एक मैश बनाया होता है, जाली लगाई होती है, उसे हम वायर मैश कहते हैं. उसका काम होता है कि वो मॉस्कीटोस और फ्लाइज को घर में एंटर करने से रोकता है. द किचन शुड हैव एन एग्जॉस्ट टू लेट द स्मोक आउट. अब किचन में एक एग्जॉस्ट फैन भी होना चाहिए जो स्मोक को बाहर निकाल सके. A neat and clean house. A house can have separate places for sleeping, washing, cooking, eating, storing, studying and meeting people. This helps to keep the house organized and neat. अब अगर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग स्पेसेस होंगी तो हाउस ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और क्लीन रहेगा. The house should also have double doors, that is a wooden door and a door with wire netting. हाउस में डबल डोर होने चाहिए, एक वुड का बना होना चाहिए और एक वायर नेटिंग का. विंडोज शुड ऑल्सो हैव वायर मैश इन ऑर्डर टू कीप द फ्लाइज एंड मॉस्कीटोज अवे. विंडोज़ पे भी वायर मैश होना चाहिए जो फ्लाइज और मॉस्कीटोज को बाहर रखे. देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे डर्टी वाटर. अब यहाँ पे जो डर्टी वाटर होता है उसको बाहर निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए. द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड प्रॉपरली. और ड्रेन्स को अच्छे से कवर करना चाहिए. दिस इज़ हाउ वी कैन कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. इससे हमारी जो सराउंडिंग है वो क्लीन रहेगी. वी शुड हैव ग्रीन प्लांट्स अराउंड आवर हाउस. प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर. सो हमारे घर के आसपास ग्रीन प्लांट्स भी होने चाहिए जिससे हमें फ्रेश एयर मिले. हाउ कैन वी कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन. सो हम अपने घर को नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं. All the garbage and household wastage should be thrown into dustbins. अब गार्बेज और हाउसहोल्ड वेस्टेज को डस्टबिन में ही डालना चाहिए. द डस्टबिन शुड बी कवर्ड एंड क्लीन डेली. डस्टबिन को कवर करना चाहिए और रोज़ क्लीन करना चाहिए. वी शुड नॉट लेट गार्बेज एंड वाटर टू कलेक्ट अराउंड द हाउस. अब गार्बेज और वाटर को घर के आसपास कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए. मॉस्कीटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर एंड कैन कॉज डिसीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू. अब जो मॉस्कीटोज़ हैं वो स्टैग्नेंट वाटर मतलब कि जो वाटर कलेक्ट होकर एक ही जगह पे खड़ा रहता है उस पानी में रहते हैं और मॉस्कीटो से मलेरिया और डेंगू भी हो सकता है. वी शुड यूज़ अ जर्म एंड इंसेक्ट क्लीनर टू क्लीन आवर फ्लोर्स डेली. अब फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए कोई भी जर्म और इंसेक्ट क्लीनर ही यूज़ करना चाहिए. फ्लोर्स शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप डेली. फ्लोर को हर रोज़ स्वीपिंग भी करनी चाहिए और मॉप भी करना चाहिए. डस्टिंग ऑफ द हाउस शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. घर की साफ़ सफाई रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए. Bathrooms and toilets should be cleaned regularly. Things such as toys, books, clothes, shoes and bags should be kept at their proper places. अब ऐसी चीज़ों को अपनी प्रॉपर प्लेसेस पर ही रखना चाहिए. This way we will not find it difficult to locate things this next time we need them. अगर हम उनको प्रॉपर प्लेसेस पे रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे हमें जब उनकी ज़रूरत होगी तो वो आसानी से हमें मिल जाएंगी. Check point. Fill in the blanks with the correct option. A house provides us shelter or danger. House हमें shelter provide करता है, so you will write shelter. The dash are made up of marbles or tiles. Windows or floors, कौन सी चीज़ बनती है marbles और tiles से? The answer is floors. A house should have proper dash to carry away dirty water. अब dirty water को निकालने के लिए क्या चाहिए हाउस में? ड्रेनेज सिस्टम. सो यू विल राइट ड्रेनेज सिस्टम. प्लांट्स गिव अस फ्रेश डैश. सो प्लांट से हमें क्या मिलता है? फ्रेश एयर और वाटर. आंसर इज एयर. मॉस्कीटोज ब्रीड इन डैश वाटर. मॉस्कीटोज कहाँ ब्रीड करते हैं? स्टैग्नेंट वाटर में. सो यू विल राइट स्टैग्नेंट वाटर हियर. क्लोथिंग. Long ago, people wore clothes made of leaves or animal skin. So लंबे समय पहले लोग leaves और animal skin से बने हुए clothes पहनते थे. Today, we wear clothes made from fibers such as cotton, silk, wool और nylon. But आज के टाइम पे हम cotton, silk, wool और nylon से बने हुए clothes पहनते हैं. Clothes protect our body from the sun, wind, rain, cold and dust. सो क्लोथ्स हमें सन, विंड, रेन, कोल्ड और डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं. देयर आर मेनली 2 types of fibers, natural and human made.
सो फाइबर्स की दो टाइप्स हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स आर obtained फ्रॉम either प्लांट्स और एनिमल्स. नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी. नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. सो प्लांट फाइबर्स वो होंगे जो हमें प्लांट से मिलेंगे और एनिमल फाइबर्स वो होंगे जो हमें एनिमल से मिलेंगे. सो एग्जांपल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स आर cotton balls from the plant are used to make fibers. A cotton dress. So a cotton dress को बनाने के लिए cotton plant से जो cotton balls की help ली जाती है. Cotton is obtained from cotton plant. Jute. Now jute is obtained from jute plant. This is jute plants and then this is used to make jute fibers and which is then used to make a jute sack or a jute bag. Now animal fibers. Animal fiber के example हैं silk and wool. Silk is obtained from the cocoons of silkworm. So silk हमें silkworm के cocoon से मिलती है और then it is used to make a silk cloth. Wool is obtained from yak and sheep. Wool हमें yak और sheep से मिलती है. yak की जो ये fur है, this is used to make wool. Then it is again used to make woolen clothes from yak wool. Human-made fibers. Artificial or human-made fibers are made by human beings. अब artificial और human-made fibers human beings बनाते हैं. They are also called synthetic fibers. इनको synthetic fibers भी कहते हैं. Some examples of human-made fibers are nylon, acrylic, terry cotton, rayon and polyester. This is a nylon robe, this is an acrylic sweater, this is terry cotton materials and this is a rayon carpet. ये सारी चीज़ें human made fibers से बनती हैं या फिर कह सकते हैं कि synthetic fibers से बनती हैं.